Hello everyone, welcome to Brilliant Accountancy. Students, as our board exams are coming near, I am preparing this video for class plus 1 students. So I have a sample paper of Kendriya Vidyalaya Sangathan Jaipur. So today I am going to discuss few questions from our chapter known as Financial Accounting with or without adjustments. So student, today I am going to discuss first question, how you are going to prepare trading account. So question number 7. Just read carefully first the question. From the following balances extracted from the books of Karan, then prepare trading account for the year ended 31st March 2019. So here we are having the information about few items which is given here. So we have stock on 1st April. This is your opening stock. Purchases and sales. So on debit side we have balance of purchase and on credit side we have balance of sale. Then returns. On debit side we have sales return and on credit side we have purchase return and direct expenses. And here are few adjustments, students. Closing stock is shown outside the trial balance and valued is 6,50,000, and goods worth rupees 5,000 are reported to have taken away from the proprietor for his personal use at home during the year. So we will solve this question first. So we will prepare format of trading account, and trading account we are going to prepare on 31st March 2019. Okay, so we will write like this: trading account for the year ended आप ये इंफॉर्मेशन लिखेंगे बेटा मार्च 31st 2019, like this. So on debit side we will take all direct expenses and on credit side we will take incomes. So this trading account is a nominal account and all expenses will be shown on the debit side and all income will be shown on the credit side, and trading account will take all direct expenses in it. So first item we have, according to question, first we have stock on 1st April. So we will write here to opening stock. We will start from here to opening stock. So students, we have opening stock of 6,25,000. So we will write here 6,25,000. Okay. Second item, as per the format we will show the purchases. And purchases, we know we do have purchases and returns also. So we will deduct returns. So less returns आप इस तरह से लिखेंगे यहाँ से. Now we will put the items. So we have purchases 9,03,000. So we have purchases 9,03,000. हम inner column में इसको लिखेंगे. This column is known as inner column. We will deduct return from it and return will be shown on the credit side. 13,000 is purchase return. So we will deduct 13,000 from this. So first we will take opening stock on the debit side of this trading account and second we will take these returns. अब आप यहाँ पे डिडक्ट कीजिए बेटा. यहाँ से आप डिडक्ट करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आपके पास आएगा ये आपके पास है 8,90,000. नाउ थर्ड आइटम, यहाँ पे दिया है कि कुछ गुड्स आपके पास हैं जो कि वर्थ रुपीज 5,000 है और उन्हें देखा गया कि वो आपने परचेज किया था बिजनेस पर्पस के लिए, लेकिन उन्हें ओनर, प्रोप्राइटर मीन्स ओनर ले गया कहाँ पे बेटा, पर्सनल यूज के लिए अपने घर लेकर चला गया.
अब ये परचेसेस को रिड्यूस करेगा, इससे परचेसेस जो है वो हमारी डिक्रीज होंगी। तो हमें दिखाना पड़ेगा इसे ट्रेडिंग में ही। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे लेस गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। आउटवर्ड्स ऑफ गुड्स हुआ है ना आपके पास, तो यहाँ पर पर्सनल यूज के लिए गुड्स बाहर गई हैं बिजनेस से, तो यहाँ पे आप लिखेंगे लेस गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। और प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए लिया था इन्हें 5000। आपके पास अब ये भी डिडक्ट हो जाएगा बिकॉज ये परचेज से रिलेट कर रहा था, तो आपने इसको डिडक्ट किया और यहाँ पर आप 5000 रुपीज़ की गुड्स को वहाँ से ले गए थे। नाउ हमारे पास कितना बैलेंस बचा, हमारे पास जो बैलेंस बचा उसे हम आउटर कॉलम में दिखाएंगे 8,85,000 रुपीज़ हम इस तरह से दिखाएंगे। हमने डिस्कस भी किया है इन आइटम्स को कि परचेज को जो आइटम रिड्यूस करती है जिससे परचेजेस हमारी कम होती है, वो सारी चीज़ें हम जो है वहाँ से रिड्यूस करेंगे। अगर हमने परचेज में से कुछ रिटर्न किया है तो हमारी बुक्स में उसे हमें डिडक्ट करना है, और कोई भी चीज़ चाहे हमने फ्री सैंपल दिया है चाहे हमें प्रोप्राइटर पर्सनल यूज़ के लिए लेके गया है उससे भी परचेजेस जो है रिड्यूस होगी। तो ट्रेडिंग में हम जो है वही परचेजेस दिखाएंगे जिनसे कि हमने कोई प्रोडक्ट बनाया हुआ है या सेल पर्पस के लिए जिन्हें हमने बाय किया हुआ है। फिर हमारे पास परचेजेस के साथ यहाँ पर एक आइटम थी सेल्स। सो वी विल टेक सेल्स ऑन द क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सेल्स। अब आपके पास जो सेल्स दी गई हैं वो हैं 16,12,000 यहाँ पे। अब इस सेल्स में से हम इसकी रिटर्न्स लेस करते हैं। अब सेल्स आपको मिलेंगी बेटा कहाँ पे, आप सभी को सेल्स मिलेंगी क्रेडिट साइड पे, लेकिन इसकी जो रिटर्न आपके पास है वो आपको डेबिट साइड पे मिलेगी। तो हम इस रिटर्न को जो है वो यहाँ से डिडक्ट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे रिटर्न आ गई, दैट इज 22,000 आपके पास यहाँ पर जो है वो रिटर्न है। किसकी रिटर्न है बेटा, सेल्स रिटर्न। सो यहाँ से हमारी परचेजेस जो है वो डिडक्ट होंगी। और अब हमारे पास जो नेट सेल्स हैं, सॉरी परचेज नहीं, सेल्स यहाँ से रिटर्न्स हमारे पास से डिडक्ट होंगी 22,000 की, और आपके पास जो नेट अमाउंट है 15,90,000 वो हम यहाँ पे आउटर कॉलम में दिखाएंगे। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर जो क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग दिखाया जाएगा वो आपके पास आपका क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा। सो वी हैव क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 6,50,000। तो हमारे पास यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है बाय क्लोजिंग स्टॉक, हम यहाँ पे दिखाएंगे क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आप लिखेंगे और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर 6,50,000। हमने क्लोजिंग स्टॉक को इसलिए यहाँ पे दिखाया बिकॉज इट इज शोन ऑन द आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। ओके, तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के बाहर था, ये एडजस्टमेंट्स के बाहर एडजस्टमेंट की फॉर्म में दिया गया था। तो आपको पता है इसकी दो तरह की एडजस्टमेंट होंगी। पहले हम इसको शो करते थे क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड नेक्स्ट हम इसको शो करेंगे आफ्टर दिस आपके पास एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में जाएगा। और अगर इनसाइड द ट्रायल बैलेंस आपके पास क्लोजिंग स्टॉक होगा तो डायरेक्ट उसे आप एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट लेंगे। वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग इन डिटेल। अब नेक्स्ट हमारे पास देखेंगे रिटर्न के बाद वी हैव डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर टेकन इनटू द ट्रेडिंग अकाउंट। सो हम डायरेक्टली इन्हें कहाँ ले लेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके पास आएंगे और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास दिए हैं 7,500 आपके पास जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सो हमने सारी आइटम्स को जो है बेटा इसमें शो कर लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास फाइनली आता है कि हमने देखना है विच साइड इज बिगर। तो मुझे पता लग रहा है कि क्रेडिट साइड हमारे पास जो है वो बिगर है, क्रेडिट साइड पे हमारे पास जो है वो ज़्यादा अमाउंट है। अब क्रेडिट साइड कितना डेबिट से बड़ी है ये हमें तब पता चलेगा जब हम इसका टोटल करेंगे। सो यहाँ पे अगर हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, देखते हैं कि क्रेडिट साइड का टोटल कितना है आपके पास। तो हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया तो ये आया 22,40,000 आपके पास क्रेडिट साइड का टोटल है। अब क्रेडिट साइड के टोटल से हम डिडक्ट करेंगे इससे
22,40,000 से हम माइनस करेंगे 6,25,000 ओपनिंग का, ठीक है। हम माइनस करेंगे 8,85,000 आपके पास जो परचेजेस हैं, और हम माइनस करेंगे 75,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। अब इन सभी को माइनस करने के बाद आपके पास जो अमाउंट आया दैट इज 6,55,000। ओके, सो ये 6,55,000 आपके पास जो है ये ग्रॉस प्रॉफिट है। सो हियर इज ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट आप लोग ये इस तरह से निकालेंगे, और ग्रॉस प्रॉफिट इज 6,55,000 आपके पास है। और इस तरह से आप यहाँ पर बोथ साइड का जो है बैलेंस इक्वल करते हुए आप जो है यहाँ पे डबल लाइन लगा दोगे। ये डबल लाइन का मतलब है आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्लोज हो गया। सो दिस वाज योर क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। यहाँ पे आपसे 3 मार्क्स में इस तरह का एक छोटा सा ट्रेडिंग का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सो ये इस तरह के क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करने हैं। फिर अगर मैं आपसे बात कहूँ कि आपके पास जो एक बिग क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आपके पास है, ये हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है और यहाँ से हम डिस्कस करते हैं। वेरियस आइटम्स आपके पास दी हैं और इन आइटम से आपने प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बिकॉज इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दिया है आपको। अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी आपके पास आता है तो व्हाट यू विल डू, आप ये सारे ग्रॉस प्रॉफिट को जो है अगर वो आपके पास निकाल कर दिया हुआ है इन्होंने, तो ग्रॉस प्रॉफिट को आप क्या करेंगे, इसी से आप क्वेश्चन करना शुरू करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, अब आपने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, ट्रेडिंग आपको बनाना नहीं है। और जो आइटम्स हमारे ट्रेडिंग पे आती हैं उन कोई भी आइटम अगर आपके पास यहाँ क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में दी होंगी, आप उन आइटम को टच भी नहीं करोगे, देखोगे भी नहीं। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से। देखो हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दिया है, तो ना हमारे पास सेल का काम है ना हमारे पास परचेज का काम है। तो पहले तो हमें इनको मार्क करना है। ना ही हम रिटर्न के ऊपर ध्यान देंगे, इनको भी हमने मार्क कर दिया। वेजेस के ऊपर भी नहीं ध्यान देंगे। फ्यूल एंड पावर भी हमारे से रिलेट नहीं करता है। कैरेज ऑन परचेज भी रिलेट नहीं करता है। ओपनिंग स्टॉक भी हमसे रिलेट नहीं करता है। तो देखिए इतनी सारी चीजें जो है वो हमें ट्रेडिंग अकाउंट में डालनी होती हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट हमें ऑलरेडी दिया गया है। सो हम इन सब आइटम्स को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। बिकॉज ये आपके पास इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को हम नहीं यूज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, बिकॉज ट्रेडिंग ऑलरेडी बना हुआ है और ये ट्रेडिंग के आइटम्स है। फिर देख लीजिए एक बार फिर से, फिर जो भी हमारे पास लेफ्ट ओवर है आइटम्स, उन आइटम्स के साथ वी विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो लेट अस प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद द हेल्प ऑफ दीज आइटम्स। सो यहां पर आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ जो भी आपके पास नाम है फॉर द ईयर एंडेड 31st। अब यहाँ पे कौन सा दिया है, मार्च 2020 आपके पास दिया हुआ है। तो यहाँ पे 31/3/2020 आपके पास दिया हुआ है। इसी तरह से यहाँ की डेबिट साइड और इधर आपके पास क्रेडिट साइड है। तो इस तरह से आप डेबिट और क्रेडिट लिख लेंगे और फिर उसके साथ आप लोग जो है इसका फॉर्मेट ड्रॉ करना शुरू करेंगे। वी विल ड्रॉ फॉर्मेट लाइक दिस। यहाँ पे आप स्केल का यूज़ कीजिएगा, मैं स्केल का यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रही हूँ। लेकिन वाइल यू आर डूइंग ऑन योर कॉपी डेफिनेटली यू विल मेक ऑल द लाइन्स विद द हेल्प ऑफ योर स्केल रूलर जो आपके पास है, उसकी हेल्प से आप जो है वो लाइन्स ड्रॉ करेंगे। फॉर्मेट आपके करेक्ट बनने चाहिए। पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर and your rupees. So in question we have already given the gross profit, so we will transfer the gross profit. Gross profit will be transferred to the credit side of profit and loss account. यहाँ पे जो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है इसे आप क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले जाएंगे और आप इस तरह से लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, आप लेकर आए हैं इसे, एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज 87,430।
Profit and loss is a nominal account, student, and all indirect expenses are shown in profit and loss account. Let us talk about the indirect expenses. So let us start. First we will take carriage on purchase. ये आपके पास कहाँ पे आएगा? कैरेज ऑन सेल आपके पास जो है वो कहाँ पे आता है? कैरेज ऑन सेल आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस है, लेकिन कैरेज ऑन परचेज जो आपके पास है बेटा वो ट्रेडिंग की आइटम है. ये कैरेज ऑन सेल का दूसरा नाम बच्चे कैरेज आउटवर्ड भी होता है. तो आप लोग इसे डायरेक्ट यहाँ पे शो कर सकते हैं. फर्स्ट आइटम इज टू कैरेज ऑन सेल, या आप कहेंगे आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, एंड दिस इज योर 6,400. ओके, लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट आइटम. नेक्स्ट आइटम स्टॉक है, नहीं लेंगे. बिल्डिंग है, आपके पास एसेट साइड जाएगी बैलेंस शीट. फ्री होल्ड लैंड एसेट है, मशीनरी एसेट है. नेक्स्ट इज सैलरीज. अब सैलरी से रिलेटेड देखिए यहाँ पे नीचे एडजस्टमेंट भी दी गई है आपके पास कि आपके पास सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च जो है वो अनपेड है. अनपेड का मतलब है स्टिल टू पेड, आउटस्टैंडिंग है. सो व्हाट विल डू, हम यहाँ पर लेंगे 2 सैलरीज. अब हमें पता है इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट भी है, और सैलरीज के लिए 30,000 है. अनपेड 1 मंथ की आपके पास है मार्च की, तो हम क्या करेंगे प्लस अनपेड, और अनपेड आपके पास है 3,000. ऐड करके आप आउटर कॉलम में दिखाएंगे 33,000. अब ये जो अनपेड अमाउंट है 3,000, इट्स अ लाइबिलिटी, एंड सेकेंडली वी विल शो ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. थर्ड आइटम आपके पास कैरेज ऑन सेल भी हो गया, सैलरी भी हो गया. अब जनरल एक्सपेंसेस है, कुछ जनरल एक्सपेंसेस से रिलेटेड यहाँ दिया गया है, कुछ भी नहीं है. सो डायरेक्ट हम यहाँ पे शो कर देंगे टू जनरल एक्सपेंसेस. यहाँ पे जनरल एक्सपेंसेस आपके पास आ जाएंगे, और जनरल एक्सपेंसेस आपके पास जो दिए गए हैं 6,000 रुपीज़ है, आप इन्हें दिखाइएगा. उसके बाद नेक्स्ट आइटम आपके पास है इंश्योरेंस. तो इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है आपके पास, तो यहाँ पे लिखेंगे टू इंश्योरेंस. इंश्योरेंस में आप अमाउंट दिखाओगे. अब देखिए इंश्योरेंस से रिलेटेड आपके पास यहाँ पर एडजस्टमेंट भी दी गई है. तो यहाँ पे इंश्योरेंस जो है उसमें 170 जो इंक्लूड किया गया है दैट इज फॉर द नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर का मतलब है वी हैव प्रीपेड इंश्योरेंस. तो व्हाट वी विल डू, वी विल डिडक्ट दिस 170 रुपीज फ्रॉम 1,200. तो यहाँ पर हम इंश्योरेंस में लिखेंगे इनर कॉलम में 1,200, जिसमें से हम लेस करेंगे प्रीपेड. अब एक एडजस्टमेंट इस 170 रुपीज की आप लोगों ने डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की, और सेकंड एडजस्टमेंट इसकी होगी कि आप इसको कहाँ दिखाओगे, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट लेकर जाओगे, बिकॉज इट इज प्रीपेड. ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है, अब यहाँ पे हमारे पास इंश्योरेंस हो गया, ड्रॉइंग, कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिटर, ये सारी की सारी चीजें जो आपके पास दी गई हैं ये एसेट का पार्ट है और लाइबिलिटी का पार्ट है, और ये ली जाएंगी कहाँ पे, बैलेंस शीट पे, लाइबिलिटी साइड पे और एसेट साइड पे शो होंगी. लेट अस टॉक अबाउट द एडजस्टमेंट्स. अब हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, लाइक वी हैव एडजस्टमेंट फॉर मशीनरी, वी हैव एडजस्टमेंट फॉर पेटेंट्स. तो मशीनरी पे हमें डेप्रिसिएशन बनानी है 10%, पेटेंट पे 20%. मशीनरी आपके पास 40,000 है, तो 10% हो गया 4,000. पेटेंट आपके पास 15,000 है, 20% आपने बनानी है, तो यहाँ पर कितना हो गया, मशीनरी पे 4,000 और पेटेंट पे 3,000. तो अब हम इनको यहाँ दिखाएंगे डेबिट साइड पे. फर्स्ट टू डेप्रिसिएशन, पहले हमने मशीनरी पे दिखाई, और मशीनरी 40,000 का 10%, 4,000 आपके पास है. फिर पेटेंट पे दिया गया है आपके पास 15,000 का 20% है, तो आपके पास यहाँ पर 3,000. अब टोटल डेप्रिसिएशन आपके पास 7,000 है. अब ये डेप्रिसिएशन एक बार तो आपने यहाँ पे दिखा दी, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे जब ये डेप्रिसिएशन अब आप एडजस्टमेंट में थी तो इसकी ट्रीटमेंट 2 टाइम्स होगी. तो ये आप दिखाएंगे बैलेंस शीट में, एसेट साइड के ऊपर आप इनको डिडक्ट करेंगे 4,000 फ्रॉम मशीनरी एंड 3,000 फ्रॉम पेटेंट्स. अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट में देखिए, अब हमारे पास ये जो वेजेस हैं, शेड ऑफ एम्प्लॉयज, कस्टमर से रिलेट करती हैं, ये हम यहाँ पर नहीं लेंगे कुछ भी.
अब हमारे पास यहाँ पे है डाउटफुल डेट्स के ऊपर हम लोग क्या बनाएंगे, डाउटफुल डेट के ऊपर हम लोग जो है वो बनाएंगे कि 5% सन्ड्री डेटर्स के ऊपर हम एक प्रोविजन क्रिएट करेंगे। सन्ड्री डेटर आपके पास 29,000 है, उसका 5%, सो 29,000 का 5% आपके पास 1450 आपके पास हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम इसे शो करेंगे डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे लिखिएगा टू प्रोविजन ऑन डेटर्स। अब ये जो प्रोविजन ऑन डेटर है ये आपको पता है इससे डेटर रिड्यूस होंगे आपके पास। ये बना आपके पास 29,000 का, आप लोगों ने 5/100 किया तो ये आपके पास कितना आ गया 1450। एक तो ये डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरा इसे कहाँ पे लिखेंगे हम बेटा, ये जाएगा आपके पास बैलेंस शीट में किससे डिडक्ट होने के लिए, इसे हम एसेट से साइड में डेटर से जो है वो डिडक्ट करेंगे, बिकॉज जितना हम प्रोविजन बनाते हैं उतने डेटर हमारे रिड्यूस होते जाते हैं। सो ये प्रोविजन ऑन डेटर है, ये डेटर्स को जो है वो कम करता है। अब यहाँ पर हमारे पास सारी एडजस्टमेंट भी कर ली, सारे अमाउंट भी। नाउ द टाइम कम्स जब हम जो है वो इनका टोटल करेंगे, देखेंगे विच साइड इज बिगर। अब यहाँ से आप दोनों साइड देखेंगे, आपको आपकी क्रेडिट साइड ही बड़ी लगेगी। तो 87,430 आपके पास यहाँ पे है। अब हमारी क्रेडिट साइड बिगर है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा नेट प्रॉफिट। तो हम लिख लेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। अब कितना ट्रांसफर करेंगे, सेम मेथड आप फॉलो करोगे। बिगर साइड में 87,430 है, डिडक्ट करो 6,400, डिडक्ट करो 33,000, डिडक्ट करो 6,000, डिडक्ट करो 1030, डिडक्ट करो 7,000 एंड डिडक्ट करो 1450। जो भी आइटम आपके पास डेबिट साइड पे है उन सभी को आप डिडक्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि हमारा जो क्रेडिट साइड है वो डेबिट साइड से कितनी बिगर है, वो है 32,550। तो ये 32,550 आपके पास क्या है, नेट प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, एंड दैट नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस शीट। सो यहां पर हमारे पास हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें डिराइव हुई ये चीज, अब ये चली जाएगी बैलेंस शीट में, कहां पे बेटा, कैपिटल में प्लस होने के लिए। लेट अस प्रिपेयर आवर बैलेंस शीट आफ्टर दिस। सो हम अब बैलेंस शीट अपनी बनाते हैं। सो यहां पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट है बैलेंस शीट ऑफ, अब यहां पे जिसका भी नाम है वो लिख देंगे आप आगे। ठीक है, यहां पे डेट एज एट 31/3/2020। तो 31/3/2020 को आप जो है अपनी बैलेंस शीट बना रहे हैं। ओके, सो यहां पर आइए 31/3/2020। अब हम क्वेश्चन की तरफ फिर से वापस जाएंगे, पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे, फिर से हम जो है क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और फिर देखेंगे कि बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीजें आएंगी। आपको मैंने दो तरह से बैलेंस शीट बताया है, एक परमानेंसी ऑर्डर में और एक लिक्विडिटी ऑर्डर में। तो आपने किसी भी ऑर्डर में जो है वो अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हो, और अगर परमानेंसी ऑर्डर में बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो, आपको पता है लायबिलिटी साइड से आप लोग स्टार्ट करेंगे कैपिटल के साथ और एसेट साइड से आप लोग स्टार्ट करेंगे फिक्स्ड एसेट्स के साथ। ठीक है, जो सबसे ज्यादा फिक्स्ड एसेट है वहां से जो है आपकी बैलेंस शीट शुरू होगी। ओके, सो यहां पे आ जाइए। अब हमारे पास है दिया हुआ पहली आइटम, अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट आइटम आपके पास यहां पर दी है कैश इन हैंड। तो हम जो है लिक्विडिटी ऑर्डर से शुरू कर देते हैं। तो अगर हमारे पास फर्स्ट आइटम कैश इन हैंड दी है तो हम यहां पे लिखेंगे कैश इन हैंड। ये लिक्विडिटी ऑर्डर से शुरू कर रही हूं मैं। पहली आइटम आएगी 1080। सेकंड कैश एट बैंक, यहां पे कैश एट बैंक में आपके पास आइटम है और कैश एट बैंक की आइटम आपके पास दी गई है, जो आइटम आपके पास है 5260। ये आपके पास है 5260 आपके पास जो है ये आइटम आपके पास आई हुई है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारे पास ये कोई आइटम नहीं हम लेंगे यहां से। अब हमारे पास आ गया बिल्डिंग भी बताया इसने,
लेकिन हम बिल्डिंग से पहले यहाँ पर दिखाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर। पहले हम सन्ड्री क्रेडिटर के बारे में ले लेंगे और सन्ड्री डेटर्स के बारे में ले लेंगे। तो यहाँ से बच्चों लायबिलिटी साइड से पहली आइटम हम शो करेंगे क्रेडिटर, और एसेट साइड में हम इसके बाद बात करेंगे डेटर्स की। अब हमारे पास क्रेडिटर और डेटर्स कितने हैं? क्रेडिटर 29, डेटर 12,600। तो यहाँ पर 12,600 हम यहाँ पे लेंगे और क्रेडिट डेटर्स में हम चले जाएंगे 29,000। अब एक प्रोविजन भी बना है तो हम उसमें से लेस कर देंगे प्रोविजन। प्रोविजन आपके पास जो है उसको लेस करेंगे 1450। अगर आप देखें 29 में से 1000 गया 28 और 28 में से 450 गए तो हमारे पास बैलेंस आया 27,550। अब नेक्स्ट आइटम यहाँ पर आपके पास स्टॉक लिखा जाएगा, जो आप लोगों ने वहां पर क्लोजिंग स्टॉक है उसको लिखेंगे हम, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे हमारे पास दिया गया हुआ है 13,600 स्टॉक एट द एंड आपके पास है। तो क्लोजिंग स्टॉक 13,600 आप यहाँ पे शो करेंगे। अब लेट अस टॉक अबाउट सम एडजस्टमेंट्स बेटा। जो आपके पास एडजस्टमेंट थी उसमें से सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है जो यहाँ पे शो होगी, दैट इज योर प्रीपेड। और क्या है? प्रीपेड रिलेट करता था किससे? इंश्योरेंस से, वही शो करेंगे आप। प्रीपेड इंश्योरेंस इट वॉज 170 रुपीज। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे देखेंगे फिक्स्ड एसेट है, लाइक बिल्डिंग, फ्री होल्ड, मशीनरी एंड पेटेंट। अब देखिए बिल्डिंग एंड फ्री होल्ड लैंड के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं थी, तो इन दोनों को हम पहले लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद उन आइटम्स को लिखेंगे जिनके ऊपर की डेप्रिसिएशन थी। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हम बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारे पास जो है वो, अब देखिए बिल्डिंग में एक चीज आपके पास बताना चाहूंगी। बिल्डिंग आपके पास थी 60,000 की, जिसमें से कि यहाँ पर वेजेस में जो है वो इरेक्शन से रिलेटेड, शेड से रिलेटेड था, 4,000 था वेजेस में इंक्लूड किया, तो ये रिलेट करता था बिल्डिंग के साथ। तो ये 60 में ये 4,000 आप ऐड कर लेंगे, ओके। तो बिकॉज उस बिल्डिंग के अंदर आपने क्या बनाया? एक शेड बनाया एम्प्लॉयज के लिए, साइकिल्स शेड बनाया, तो उसी बिल्डिंग का पार्ट है, वो भी एक एसेट क्रिएट हुआ है और वो बिल्डिंग का पार्ट है, तो बिल्डिंग में इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पर बिल्डिंग में आप लिखेंगे 60,000 प्लस 4,000 और वेजेस में से ये डिडक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास 64,000 आया। उसके बाद आपके पास है नेक्स्ट बिल्डिंग हो गया फ्री होल्ड लैंड। सो हम यहाँ पर फ्री होल्ड लैंड लिखेंगे। फ्री होल्ड लैंड इज ऑफ 20,000। सो यहाँ पे आप 20,000 फ्री होल्ड लैंड लिखेंगे। सो 20,000 फ्री होल्ड लैंड के लिए आप लोग जाएंगे। और उसके बाद आइए आपके पास आता है मशीनरी। अब मशीनरी आपके पास यहां पर दी गई है 40,000 की, जिसके ऊपर की 10% डेप्रिसिएशन लगी है, तो यहाँ पे 40,000 लेस डेप्रिसिएशन, दैट इज योर 4,000। सो अब मशीनरी 4,000 से कम हो गई, तो इसकी रिड्यूस्ड वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू जो है आफ्टर डेप्रिसिएशन आप यहाँ पे शो करेंगे। एंड नेक्स्ट आपके पास जो था वो था पेटेंट, और पेटेंट आपके पास जो था, पेटेंट का जो अमाउंट था यहाँ पर 15,000 था, तो 15,000 आप यहाँ पे लिखेंगे। और इस 15,000 पे हमारे पास लेस डेप्रिसिएशन हुई, और वो डेप्रिसिएशन है 3,000 की, और यहाँ पे 12,000 रुपीज आप लिखेंगे। So hope this side of asset is clear to you all. Now come to the liability side. Liability side पे हमने आपके पास क्या है? क्रेडिटर पुट कर दिए हैं। So आफ्टर क्रेडिटर हमें ये देखना है एडजस्टमेंट में कुछ तो नहीं था, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट में हमारे पास जो गिवन था आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, तो फर्स्ट वी विल डू द एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी। सो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरीज को हम यहाँ पे ले लेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरीज आपके पास दी हैं 3,000, तो आप यहाँ पर 3,000 शो करोगे। और उसके बाद हमारे पास कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, वी विल स्टार्ट विद कैपिटल। यहाँ पर हमारे पास जो कैपिटल दी गई है दैट इज 1,42,000, जिसमें से हमने ये ड्राइंग है 10,490 की, ये डिडक्ट होती है। तो सबसे पहले लिखेंगे 1,40,000
2000। अब आपके पास इधर ऑप्शन है, या तो आप पहले प्रॉफिट ऐड कीजिए फिर ड्राइंग लेस कीजिए, या आप पहले ड्राइंग लेस कीजिए फिर प्रॉफिट ऐड कीजिए। चलिए पहले प्रॉफिट ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी ऐड प्रॉफिट, और प्रॉफिट आपको प्रॉफिट एंड लॉस में से निकला है, वो है 32,550, और हम उसमें से लेस करेंगे ड्राइंग्स जो ऑलरेडी आपके पास ट्रायल बैलेंस के अंदर दी गई है, और वो ड्राइंग आपके पास है 10,490। इसको हम यहाँ से लेस करेंगे, मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, चलिए लेस आपको पहचानने में आ जाए। अब जो अमाउंट आपके पास निकला वो निकला 1,64,060 रुपीज। तो 1,64,060 1,64,060 रुपीज आपके पास यहाँ पर आया। सो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि क्या हमारे पास सारी आइटम आ गई हैं। तो हमने देखा, हमने सारी आइटम्स को एंटरटेन कर लिया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, लेट अस सी आर बोथ साइड्स आर इक्वल और नॉट। अब हम दोनों साइड का अपना टोटल करेंगे, एसेट साइड का टोटल भी करेंगे और लायबिलिटी साइड का भी टोटल करेंगे। अगर ये इक्वल है मींस आवर क्वेश्चन इज करेक्ट। तो अब यहां से अगर हम टोटल करने जाएं, 64 167 और 10 हो गया 177 78 79। तो हमारे पास टोटल है 1,79,600 1,79,660 आपके पास है। और इधर भी अगर आप टोटल करेंगे तो सेम आएगा 1,79,660। जब आपके पास आपकी लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू योर एसेट, दैट मीन्स योर बैलेंस शीट इज करेक्ट। यहाँ पे आपकी बैलेंस शीट करेक्ट है अगर आपकी बैलेंस शीट मैच हो रही है तो। So students, this was the question. You all can take screenshot of this question, and this is the answer of your question. This was the profit and loss account and balance sheet. अब अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेरीज आती हैं, तो आपने स्टेप बाय स्टेप इन्हीं स्टेप्स को जैसे मैंने क्वेश्चन किया वैसे आप लोगों ने फॉलो करना है। So that's all from my side. Thank you.